Hello guys, today we'll discuss about our leftover topics of the second chapter. After these topics, the chapter will be considered as completed. So let's move on. The next topic is attainable and non-attainable combinations at PPC. As we have discussed that at any point at PPC shows the maximum possible combinations which can be produced with the help of given resources when we are producing two goods. So, with this assumption, we are talking about these two points. One is attainable, and the other one is non-attainable combinations. So, moving towards the first concept, that is the attainable combinations. So, any point at PPC line or at any point at PPC means प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जिसको हम कहते हैं, कोई भी पॉइंट उस कर्व पे है तो उस पॉइंट को हम अटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहेंगे. रिमेंबर, every point shows a combination because we are taking into consideration the production of two goods simultaneously. That means with the help of given resources, a producer is producing two goods simultaneously in the economy. That's why we will be having a combination at any point or every point of PPC. So let's see the point A, B, C. We have 3 points here on PPC. Each point is showing a combination which we can see. At point A, 90 units of rice. We have taken rice as a commodity at OY axis and wheat as the other commodity on OX axis. So at point A, the combination is 90 and 10 tons. 90 tons of rice is being produced and 10 tons of wheat is being produced. Moving towards the next point, at point B, here we have the combination 70 tons and 20 tons. That means the producer is increasing the production of wheat, so he has to reduce the production of rice, as we have the assumption that resources are limited. So resources limited होने की वजह से अगर वो उसको एक commodity का production बढ़ाना है तो दूसरे का उसे reduce या decrease करना ही करना पड़ेगा, जो कि हम point B पे देख रहे हैं. तो moving towards point B from A, what we have seen that we have reduced the production of rice to increase the production of wheat, and moving towards the point C, we have another combination that is 30 and 35 tons. Okay, 30 tons of rice is being produced and 35 tons of wheat is being produced by the producers. Okay, we have three combinations at point A, B and C. All these points shows the attainable combinations because these are at the point at PPC. ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के ऊपर पॉइंट्स हैं. तो हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हम इन कॉम्बिनेशंस को अटेन या अचीव मींस इनका प्रोडक्शन हम कर सकते हैं. Okay, and point A, B, C, any combination or any production at point A, B, C is showing the maximum possible combinations of two goods which can be produced. Point A पे जो combination है वो point A के लिए maximum है. That means at point A 90 टन से ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन नहीं हो सकता और 10 टन से ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है. अगर हम किसी का भी इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो हमें दूसरे का डिक्रीज़ करना पड़ेगा. जैसे कि हम पॉइंट बी पे देख सकते हैं, तो पॉइंट बी पे जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाएगा दोनों ही गुड्स का. That means 70 tons of rice and 20 tons of wheat can be produced with the given resources at point B. We cannot increase any of the production or any of the goods production or commodities production at point B. If we do want to increase, we have to reduce the another. At point C, we have increased the production of wheat, so we have to have to reduce the production of rice. So we have 30 tons of rice which had been decreased from 70 to 30 because we have increased the production of wheat from 20 tons to 35 tons. Okay, so point A, B, C are showing the attainable combinations, and these are the maximum possible combinations of production which can be produced with the given resources. Okay, तो दो पॉइंट्स हमें पता चले कि कोई भी पॉइंट जो पीपीसी पे है वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि गिवन रिसोर्सेज से हम उनको अचीव कर सकते हैं. और पॉइंट और एनी पॉइंट एट पीपीसी shows the maximum possible combinations. पीपीसी के ऊपर जो कर्व है वो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा होगा कोई भी पॉइंट. उससे ज़्यादा या उससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनअटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस. सो एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी
is considered as non-attainable or unattainable combinations, because if we see at point E, so at point E, we cannot produce the combination whatever the point E will show rice and wheat. That means कि point E को अगर हम OY एक्सिस पे मिलाएं और OX एक्सिस पे मिलाएं तो जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा उस कॉम्बिनेशन को हम प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम राइस का प्रोडक्शन घटाए बिना ही व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज कर दें. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि बी पॉइंट को ही मैं ई पॉइंट तक, अगर हमारा बी पॉइंट जो कि पीपीसी पे दिख रहा है हमें फर्स्ट ये ग्राफ में, अगर इसी बी पॉइंट को मैं एक्सटेंड करके सेकंड ग्राफ में ले आऊँ और उसका नाम मैंने ई पॉइंट रख दिया है, तो दैट मीन्स बी पॉइंट पे 70 टन्स जो कि राइस के प्रोड्यूस हो रहे थे और 20 टन्स जो है वीट के, अब मैंने बी को ई नाम दे दिया है. ठीक है, जो कि हमारा बियॉन्ड पीपीसी चला गया है. अब इसका प्रोडक्शन जो है 20 टन्स की बजाय वीट का प्रोडक्शन हमने इंक्रीज करके 35 कर दिया है. तो दैट मीन्स राइस का 70 और वीट का 35, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रीवियस ग्राफ में वीट का 35 है, लेकिन उस केस में है जब हमारे पास राइस का प्रोडक्शन घट के रिड्यूस होकर 30 टन्स हो गया है. दैट मीन्स पॉइंट ई पे जो कॉम्बिनेशन दिखेगा 70 एंड 35 का, वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं, अटेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द सफिशिएंट और एडिक्वेट रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, so that we cannot achieve the combinations which are being shown by point E. So this point shows the unattainable combinations, or you can say any point beyond PPC. PPC के बाहर जो भी point होगा वो हमारा unattainable होगा, because हमारे पास resources limited है, हम assumption पहले पढ़ चुके हैं. Another point here is to keep is to note down is that any point inside PPC, we have seen in first graph any point at PPC shows the attainable, but any point inside PPC is also shows or depicts the attainable combinations. अगर कोई point inside PPC भी है, हालांकि inside PPC जो है वो दिखाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनका हम फुलर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है जितना हो सकता है. हो कितना सकता है? PPC तक, लेकिन हम पीपीसी के अंदर ही किसी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी जो है वो हमारा अटेनेबल होगा. ओके, वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी दिखाएगा और उसको हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग एंड रोटेशन इन पीपीसी. हमने शिफ्टिंग का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लिया था ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में, जब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था. अब हम इसको ब्रॉडली डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से शिफ्ट हो सकता है. एंड अनदर वन इज रोटेशन इन पीपीसी, कि पीपीसी रोटेट भी होता है. ये दोनों ही जो शिफ्टिंग एंड रोटेशन है होती किसकी वजह से है? शिफ्टिंग एंड रोटेशन इन पीपीसी हैपेंस ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज आइदर और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. दोनों की वजह से, या तो रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं या फिर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही हो, दोनों की वजह से ही पीपीसी जो है शिफ्ट भी हो सकता है और रोटेट भी हो सकता है. लेकिन होगा कौन सा? मीन्स शिफ्ट होगा या फिर रोटेट होगा, वो हम नेक्स्ट देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग रोटेशन इन पीपीसी. रोटेशन दो तरीके से हो सकती है. रोटेशन एट एक्स एक्सिस, मीन्स पीपीसी जो है सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा हो, वाई एक्सिस पे वो चेंज हो ही ना. और सेकंड वन इज रोटेशन एट वाई एक्सिस, दैट मीन्स वाई एक्सिस पे पीपीसी रोटेट हो गया हो और एक्स एक्सिस के ऊपर वो स्टेबल रहा हो, अनचेंज्ड रहा हो. So we are taking the rotation at x axis. So we have two graphs of the rotation of PPC at x axis. x axis पे वो या तो rightward रोटेट हो गया हो या फिर लेफ्टवर्ड रोटेट हो गया हो. कीप रिमेंबर एक्स एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा है, वाई एक्सिस पे वो अनचेंज्ड है. ओके, तो वाई एक्सिस पे उसका जो पॉइंट है वो सेम रहेगा, सिर्फ पॉइंट्स या जो सिचुएशंस हैं या जो प्लेसेस हैं या स्टेट्स हैं वो चेंज होंगे एक्स एक्सिस के ऊपर. या तो राइटवर्ड की तरफ वो रोटेट होगा या फिर लेफ्टवर्ड रोटेट होगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द राइटवर्ड रोटेशन एट एक्स एक्सिस. ये किस वजह से होता है? हम देख सकते हैं कि पॉइंट ए एट वाई एक्सिस एंड टू पॉइंट्स P and P1 at x axis. ओके, तो दैट मीन्स इनिशियल पीपीसी जो है हमारा वो है AP. ठीक है, जो भी कॉम्बिनेशन हम इस पीपीसी पे प्रोड्यूस कर रहे थे, द नेक्स्ट कर्व इज AP1. दैट मीन्स P से शिफ्ट रोटेट होके जो है हमारा जो पीपीसी है वो P1 पे चला गया है, लेकिन ओवाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो ए ही रहा. दैट मीन्स राइस का प्रोडक्शन अनचेंज्ड रहा, सिर्फ प्रोडक्शन वीट का ही चेंज हुआ और वो चेंज क्या आया? इंक्रीमेंट. दैट मीन्स वीट का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस. राइस के प्रोडक्शन को चेंज किए बिना ही वीट का प्रोडक्शन हमने इंक्रीज कर दिया है.
ये हुआ कैसे होगा? ये हुआ होगा इट वुड हैपन ड्यू टू रिसोर्सेज फॉर वीट मे हैव इंक्रीज्ड आइदर और टेक्नोलॉजी फॉर वीट मे हैव इम्प्रूव्ड। या तो रिसोर्सेज जो है वीट में जो यूज़ हो रहे हैं वो रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए हों, ठीक है, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वीट के प्रोडक्शन के लिए वो इम्प्रूव हो गई हो। उससे फॉर एग्जांपल H5 सीड्स हम यूज़ करने लग गए हों वीट के लिए, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन या आउटपुट इंक्रीज हो गया हो, ठीक है। लेकिन राइस की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया है, ना तो वो इंक्रीज हुए हों ना ही डिक्रीज हुए हैं, इसलिए राइस का प्रोडक्शन अनचेंज रहा। द नेक्स्ट इज रोटेशन अगेन, लेकिन ये रोटेशन जो है वो लेफ्टवर्ड हुई है, रोटेशन एट एक्स एक्सिस बट द रोटेशन इज लेफ्टवर्ड्स। ओके, तो जैसे राइटवर्ड था उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट लेफ्टवर्ड होगा। वीट का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है विदाउट मेकिंग चेंजेस इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, रीज़न बीइंग या तो टेक्नोलॉजी तो जो थी वो ऑब्सलीट हो गई होगी, जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं वीट के प्रोडक्शन के लिए वो आउट ऑफ ट्रेंड हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, ऑब्सलीट हो गए हैं, ठीक है। तो उनकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई, तो वीट का प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे कम हो गया, या फिर रिसोर्सेज जो है वीट के प्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कम हो गए हैं, ठीक है। राइस के प्रोडक्शन के लिए हमने रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं किया है, तो राइस का प्रोडक्शन जो है अनचेंज रहा। सेम एज द रोटेशन एट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में भी लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड रोटेशन हुआ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द राइटवर्ड रोटेशन एट वाई एक्सिस और वाई एक्सिस। ओवाई एक्सिस पे हमने राइस लिया है, तो राइस के प्रोडक्शन में अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है पीपीसी, दैट मीन्स इंक्रीज हो गया राइस का प्रोडक्शन विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स राइस के रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए होंगे, या फिर राइस के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। द नेक्स्ट इज लेफ्टवर्ड रोटेशन। लेफ्टवर्ड रोटेशन इसका ऑपोजिट हो गया है एग्जैक्टली, कि अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, रोटेट हुआ है हमारा पीपीसी वाई एक्सिस के ऊपर, दैट मीन्स राइस का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया है विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। व्हीट का प्रोडक्शन पॉइंट ए पे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ राइस का प्रोडक्शन पी से P1 दैट मीन्स रिड्यूस हो गया। इसका मतलब रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए होंगे, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो ऑब्सोलीट हो गई होगी, जो भी मेथड्स या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से राइस का प्रोडक्शन पहले के मुकाबले हम कम कर पा रहे हैं। द नेक्स्ट इज शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी। The reason will be the same or remain same due to resources और technology, या तो resources या technology में changes आए होंगे, लेकिन difference क्या रहेगा? Previously जब हम देख रहे थे rotation में, तो rotation में हमने देखा था कि resources एक point of time में जब हम rightward o x axis पे ले रहे थे या leftward o x axis पे ले रहे थे, तो हमने सिर्फ क्या देखा था, सिर्फ एक wheat के production के लिए ही resources या फिर technology हमने change की थी। एंड जब हम ओवाई एक्सिस पे रोटेशन ले रहे थे तब हमने सिर्फ राइस के प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज चेंज किए थे। दैट मीन्स जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी किसी एक कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए ही चेंज होते हैं या इंक्रीज या डिक्रीज, तब रोटेशन होता है। व्हेन द रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी चेंजेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली वन कमोडिटी, this will result into rotation of PPC. And if the resources or technology may improve or increase for both the commodities or more than two commodities, ओके, दो या दोनों, दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ के लिए रिसोर्सेज इंक्रीज या टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, तो इट रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, जो है ये शिफ्ट कर देता है पीपीसी को, अगर रिसोर्सेज जो है दोनों कमोडिटीज़ के लिए इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी दोनों कमोडिटीज़ के लिए इंप्रूव हो जाए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज इज बीइंग इंक्रीज्ड, ओके, साइमल्टेनियसली दोनों ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हम साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर पा रहे हैं, जबकि हम इनिशियली क्या पढ़े थे कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से हमारे पास एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का प्रोडक्शन घटाना पड़ेगा। दैट्स वाई पीपीसी इज जो है स्लॉप्स डाउनवर्ड। पीपीसी स्लॉप्स डाउनवर्ड क्यों होती है या डाउनवर्ड स्लॉपिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का घटाना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने दोनों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम में देखें तो पीपी जो कि हमारा इनिशियल कर्व है वो पीपी से शिफ्ट होकर P1 पे हो गया है। दैट मीन्स हमारा दोनों ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन हम इंक्रीज कर पा रहे हैं विदाउट गेटिंग डिक्रीज्ड द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द कमोडिटीज़, किसी का भी रिड्यूस किए बिना ही। रीज़न वेरी बहुत सिंपल है कि रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए होंगे बोथ द कमोडिटीज़ फॉर बोथ द कमोडिटीज़, और इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट द टेक्नोलॉजी improved for both the commodities,
दोनों के लिए टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो गई होगी या फिर रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए होंगे। दोनों में से कोई केस या दोनों केसेस साथ साथ हो सकते हैं, जिस वजह से राइटवर्ड शिफ्ट हुआ पीपीसी में। और राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि ग्रोथ हुआ रिसोर्सेज का, जिस वजह से दोनों ही कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, दोनों का साइमल्टेनियसली इंक्रीज कर पाएंगे विदाउट रिड्यूसिंग और डिक्रीजिंग the production of any of the commodities. The next one is leftward shift. लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होता है? जब रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी जो है उसमें चेंजेस आए, और वो चेंज कैसे हो? डिक्रीज। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई होगी, आउटडेटेड हो गई होगी फॉर बोथ द कमोडिटीज, और रिसोर्सेज में हैव डिक्रीज्ड फॉर बोथ द कमोडिटीज। दोनों के लिए रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए हैं या टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, जिस वजह से वो जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया और दोनों के ही प्रोडक्शन में डिक्रीमेंट आया। दैट मीन्स किसी एक का डिक्रीज होने का रीज़न क्या हो सकता है कि दूसरे का इंक्रीज हुआ हो, हमने रिसोर्सेज शिफ्ट कर दिए हों, वीट से रिसोर्सेज निकाल के राइस में लगा दिए, तो राइस का प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लेकिन वीट का डिक्रीज होगा। यहाँ पे दोनों का डिक्रीज हो रहा है, वीट का भी एंड राइस का भी। रीज़न बीइंग हमारे रिसोर्सेज जो भी लगे हुए हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्सोलीट हो गई है, जिस वजह से दोनों का प्रोडक्शन जो है साइमल्टेनियसली रिड्यूस हो गया है। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स हैं, कंसर्न टॉपिक्स पीपीसी से रिलेटेड, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे जो चैप्टर है हमारा फिनिश हो गया है। उसकी कुछ जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं, मेनली ये जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है, ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे रिलेटेड है, कि किस तरीके से जो है कोई भी पॉइंट इनसाइड पीपीसी क्या शो करेगा। वो 1 मार्क के लिए भी हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ जैसे कल पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको पीपीसी के थ्रू कैसे दिखाएंगे, तो वो भी इनसाइड पीपीसी ही दिखाएगा। या फिर हम बोलें कि लाइक कोई भी ट्रेनिंग स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही है गवर्नमेंट, तो पीपीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से कि प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सरसाइज में हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड ये जो टॉपिक्स थे, या इन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड वो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ पीपीसी।